بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر اور میں ہوں ہیرا جاوید۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، ڈسٹرکٹ بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، کئی سال تک ڈی ایس پی کی پوسٹ پر رہنے والے اعجاز ترین کی نوکری کا آرڈر جعلی نکلا ہے۔ کئی سال تک ڈی ایس پی کی پوسٹ پر رہنے والے اعجاز ترین کی نوکری کا آرڈر جعلی نکلا۔ سندھ سروس ٹریبیونل کے فیصلے کے بعد آئی جی سندھ نے آرڈر کو جعلی قرار دے دیا۔ آئی جی سندھ نے ڈی ایس پی اعجاز ترین سے تنخواہیں اور دیگر مراد واپس لینے کا حکم بھی کر دیا۔ اعجاز ترین ہمیشہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے سینئر پوسٹوں پر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وقار آرائی سے۔ جی وقار، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، سندھ کے کئی شہروں میں ایس پی اور ڈی ایس پی کی پوسٹ پر رہنے والے اعجاز ترین کی نوکری کا آرڈر جعلی نکلا ہے۔ سندھ سروس ٹریبیونل کے فیصلے کے بعد آئی جی سندھ نے آرڈر کو جعلی قرار دے دیا۔ آئی جی سندھ نے ڈی ایس پی اعجاز ترین سے تنخواہوں سمیت دیگر مراد واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلو کہ اعجاز ترین ہمیشہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے سینئر پوسٹوں پر رہے اور سندھ کے کئی شہروں میں ایس پی اور ڈی ایس پی کے طور پر اپنی سروس اور اپنا کام کر چکے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں اعجاز ترین کا کہنا ہے کہ میں سپریم کورٹ میں بھی گیا ہوں، آئی جی سندھ نے ذاتی رنجش کی بنا پر ایسا حکم جاری کیا ہے۔ جی تمام صورتحال سے تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کا وقار آرائی، بہت شکریہ آپ کا۔ نوشہرہ ورکہ میں تاجر کے گھر دن دہاڑے کار سوار ڈاکوؤں کی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکوؤں نے گھر میں داخل ہو کر گن پوائنٹ پر خواتین کو یرغمال بنا لیا۔ مسلح ڈاکو 10 تولے طلائی زیورات اور 5 لاکھ روپے نقدی لے اڑے۔ ڈاکو واردات کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے شواہد اکٹھے کرنے میں پولیس اس وقت مصروف عمل ہے۔ نوشہرہ ورکہ میں تاجر کے گھر دن دہاڑے کار سوار ڈاکو کی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ ڈاکو نے گھر میں داخل ہو کر گن پوائنٹ پر خواتین کو یرغمال بنا لیا۔ مسلح ڈاکو 10 تولے طلائی زیورات اور 5 لاکھ روپے نقدی لے اڑے۔ ڈاکو واردات کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف ہے۔ جی ہاں، اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں کہ نوشہرہ ورکہ میں تاجر کے گھر دن دہاڑے کار سوار ڈاکو کی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ ڈاکو نے گھر میں داخل ہو کر گن پوائنٹ پر خواتین کو یرغمال بنا لیا۔ مسلح ڈاکو 10 تولے طلائی زیورات اور 5 لاکھ روپے نقدی لے اڑے۔ ڈاکو واردات کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف ہے۔ آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں اسلام آباد۔ اعظم سوادی کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ کتنا جلدی کس پیسے کے اندر کس ٹرم کے اوپر جو ہے آپ ہمیں بنا کے دے سکتے ہیں۔ میں پورے پاکستان اور بیرون ملک پاکستانی انویسٹر کو یہ کہہ رہا ہوں، سارے ڈیولپر کو کہہ رہا ہوں، انجینئرز کو کہہ رہا ہوں کہ آئیں پاکستان ریلوے کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے آپ اگر انسولیسٹ جو مجھے بڈ دیتے ہیں اس کے بعد پیپر رول جس طرح اپلائی ہوتا ہے اس طرح کر کے ایک کمپٹیٹیو مارکیٹ میں آ کر ریلوے کے ہاتھ مضبوط کریں۔ ہمارے پاس خدا تعالیٰ کا فضل ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے، اس کی کمٹمنٹ ہے کہ ریلوے کو ہم نے مضبوط کرنا ہے تاکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہو، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اگر اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے تو آپ کا کنسٹرکشن نمبر 1، ٹورزم نمبر 2، اور ان دونوں کی جو ہب ہے درمیان کے اندر وہ ہے پاکستان ریلوے۔ اس لیے ایف ڈبلیو او اور ساری ٹیم کو جنرل صاحب میں ویلکم کرتا ہوں، سینیٹر صاحبان کو بھی کہتا ہوں، آپ چیمبر آف کامرس کو بھی کہتا ہوں۔ ہم 26 تاریخ کو ایک بہت بڑا پروگرام جو ہے راول پنڈی میں کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد راول پنڈی کے اندر ہماری جتنی بھی پراپرٹیز ہیں اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر جو ہے ہم ڈیولپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس پہ اربوں روپیہ جو ہے پاکستان ریلوے کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ 29 تاریخ کو میں کراچی جا رہا ہوں، وہاں پر بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ریلوے کی جو زمین جو 72 سال سے زیرو انکم تھی، سوئے ہوئے ہم تھے، ہم نے وقت جو ہے اس کو ضائع کیا،
वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ट्रांसपेरेंट तौर पर हम इंशाल्लाह ताला उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मेरी आप मीडिया के जरिए से जहां जहां आवाज आ रही है, इसमें किसी किस्म का कोई अभाव हो, मेहरबानी करें, आप मेरे इंटरव्यू जो है शाये करें। आप वहां पे 26 तारीख को जो है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंडर जो है ये प्रोग्राम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला गवर्नर जो सिंध के हैं इमरान इस्माइल, उसके अंडर जो है इंशाल्लाह ताला 29 को या 30 को जो है वो प्रोग्राम हो रहा है। आप भी हमारे पार्टनर बने ताकि पाकिस्तान के रेलवे की जो ज़मीन है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ट्रांसपेरेंट तौर पर हम रेलवे की आमदन को ज़्यादा करें, मुल्क की आमदन को ज़्यादा करें, और जगह जगह जो नाजायज़ कब्जे पाकिस्तान के रेलवे की ज़मीन पे हो रहे हैं उन कब्ज़ों से अपनी जान छुड़ाएं। एक बार फिर मैं FWO का शुक्रिया अदा करता हूं और कहता हूं कि हमारे साथ बैठें, न सिर्फ ये PSDP के प्रोजेक्ट बल्कि इंशाल्लाह ताला हमारे पास और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और अगर कहीं भी उनको किसी किस्म की पैसों की जरूरत हो, किसी चीज की जरूरत हो, इंशाल्लाह ताला हम मुहैया करेंगे। वजीर रेलवे आजम सवादी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि रेलवे का माल गाड़ियों से 30 अरब मुनाफे का टारगेट है। उन्होंने कहा कि 9 माह बाद रेलवे मुनाफे में जाएगी। रेलवे का माल गाड़ियों से 30 अरब मुनाफे का टारगेट बनाया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि RPO फैसल राना ने जिला राजनपुर के थाना रोजान के इलाके में कच्चे का दौरा किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर DIG मोहम्मद फैसल राना ने जिला राजनपुर के थाना रोजान के इलाका कच्चा का दौरा किया। RPO ने कच्चा के इलाका में कानून चिकनों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों और अफसरान से मुलाकात की। RPO ने कानून चिकनों का मुकाबला करने के लिए बनाई गई चेक पोस्टें भी देखी। इस मौका पर RPO फैसल राना ने खिताब करते हुए कहा कि कच्चे के इलाका में कानून चिकनी के हवाले से खौफ की इलामत बनने वाले गैंगस्टर्स को कानून ने अपनी ताकत के शिकंजे में कस लिया है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका हिकमत अमली से इस तरह के नतीजा खेज कानूनी इकदाम उठाए गए कि कानून चिकनों की कमर टूट गई। एडिशनल IG पुलिस साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने खानेवाल का दौरा किया। AIG साउथ पंजाब को पुलिस के चाको चुबंद दस्ते की सलामी दी और एडिशनल IG साउथ पंजाब ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। खानेवाल से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। एडिशनल IG साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का खानेवाल का दौरा। एडिशनल IG कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल DP ऑफिस खानेवाल पहुंच गए। DPO मोहम्मद अली वसीम ने एडिशनल IG का पुरतपाक इस्तकबाल किया। एडिशनल IG साउथ पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़ेर बादशाह राजी भी इस मौका पर मौजूद थे। एडिशनल IG साउथ पंजाब यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर भी चढ़ाई। एडिशनल IG साउथ पंजाब DP ऑफिस के मुख्तलिफ ब्रांचों का भी दौरा किया। एडिशनल IG कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने DP ऑफिस के लॉन में पौधा भी लगाया। जनूबी पंजाब को क्राइम फ्री बनाने का टास्क लेकर आया हूँ। पुलिस के रवायती इमेज को ख़त्म करके इंसाफ की मेरिट पर फराहमी तरजीह है। कम्यूनिटी पुलिसिंग पर एतमाद हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। पुलिस अफसरान मजलूम की दाद रसी के लिए जालिमों को निशान इबरत बनाएं। साउथ पंजाब में जराइम की शरह कम करने के लिए मौसर इकदाम पर अमल पैरा है। थानों में मेरिट पर तफ्तीश का निज़ाम वज़े कर दिया गया है। पुलिस की कारकर्दगी में इजाफा 7 जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पुलिस की जानिब से शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहरिक हैं। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ TV टुडे खानेवाल। एडिशनल नाजरीन, जहानिया में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मजदूर, शहरी और खातीन आटे के हुसूल के लिए लाइनों में लगकर सारा दिन ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। आटे के लिए लगे लाइनों में कोरोना वायरस SOPs का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मजीद बताएंगे जहानिया से अमजद हुसैन बुट्टर। जी बिल्कुल, जहानिया में आटे का बहरान पैदा हो चुका है और लोगों के आटे के उसूल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैं इस वक्त जहानिया की गला मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ भी एक ट्राली के साथ लोगों का रश देखने को नज़र आ रहा है और लोग आटे के उसूल के लिए लाइनें लगाए खड़ी हैं। और यहाँ अगर SOPs की बात की जाए तो कोरोना वायरस के हवाले से कोई भी SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ और ना ही डिस्टेंस रखा हुआ है। और जो यहाँ जो आटा लेने के लिए आए हैं वो उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਾਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਧੁੱਪੇ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਉੱਧਰੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜਨੇ 400-500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਧਰ ਹੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਰੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਸਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜੀਏ ਤੇ ਆਟੇ ਲਵੀਏ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, उनका कहना है कि हम मजदूरी छोड़ के यहाँ आटे के असूल के लिए आए हैं और पिछले 3 घंटे से यहाँ आटे के असूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि यह आटा नाकस है और इससे हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। और इन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि आटा का जो ये फराहमी है वो आम दुकानों पर इसको फराहम किया जाए ताकि वो बआसानी आटा खरीद सकें। उनका दूसरी जानिब आपको बताएं कि रावलपिंडी चकाला कंटोनमेंट बोर्ड हुकाम की मुबैना गफलत और अपने फ्राइज से चश्मपोशी के बायस अकरम कॉलोनी लालाजाद गली नंबर 14 के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बशीर मलिक से। जी बशीर मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है राजा अकरम कॉलोनी में, जहाँ के मकीन जो है पानी को तरस रहे हैं और पिछले 5 साल से ये लोग अपने तय खुद टैंकों में पानी डलवा रहे हैं। इस वक्त जो है यहाँ अहले मकीन जो है एहतजाज कर रहे हैं। मजीद जानते हैं उनसे इस हवाले से। ये हमारे को 5 साल से पानी नहीं मिला और हम जहाँ भी जाते हैं और हमारी एप्लीकेशनें रख लेते हैं। सीओ साहब कने भी गए हैं, सीओ साहब कने भी एप्लीकेशन, राजा बशारत साहब कने भी गए हैं, वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी है। 5 साल से हमें पानी, पाइप लाइन बीचे में पानी नहीं खोल रहे, पाइप लाइन में पानी नहीं आता और पानी पाइप लाइन बीचे में जैंड से बंद है जिसको नहीं खोला जा। जी बिल्कुल, जैसा कि लोगों को आपने सुना बयान, उनका कहना है क्या यह वज़ीर-ए-आज़म ये क्या नया पाकिस्तान है आपका, और यहाँ पे किस तरह लोगों के साथ रावलपिंडी शहर में ये पानी के लिए लोग एक नाजरीन, गढ़ महाराजा में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जान मोहम्मद वाला में पहली क्लास के तालिब इल्म पर टीचर की जानिब से मुबैना तशद्दुद की वजह से बच्चे का सर फट गया, हस्पताल मुंतकिल, सर पर 3 टांके लगे। लवाहिकीन की जानिब से MLC रिपोर्ट हासिल करके पुलिस थाना गढ़ महाराजा को दरख्वास्त जमा करवा दी गई। मजीद जानते हैं आमिर अली से। आमिर अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गढ़ महाराजे के इलाका मौजा जाना में जान मोहम्मद प्राइमरी स्कूल में टीचर की जानिब से 5 साल मोहम्मद अब्बास नामी बच्चे पर तशद्दुद किया गया है, जिसमें बच्चे की हालत घायल होने पर लवाहिकीन ने RSC हॉस्पिटल गढ़ महाराजा मुंतकिल किया। वहाँ बच्चे पर 3 टांके भी लगाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बच्चे के चचा, उनसे बात करते हैं। सर, ये क्या वाक़या पेश है और टीचर की जानिब साडा बच्चा स्कूल गया जी, ते उत्ते 11 बजे के टाइम में बच्चे नूं मारिया जी, मिस 3 टांके लग गए। सानू 1 बजे पता लगा, अस गए हैं, साडा बच्चा बेहोश आई। अस उस को पूछया साडे बच्चे ने क्यों मारे, और साडे नाल नाराज़ होई, तुहाडे बच्चे नालायक हैं, पढ़दे नहीं। अस बच्चे अपने लाए आ गए, साडे दूए बच्चे ने स्कूल चों कढ़ दिता सो। साडी DPO जंग नूं अपील है, मैं तलीम नूं अपील है भई इस उस्तानी के खिलाफ एक्शन लिया जाए तो सानू इंसाफ मिलिया जाए। जी, जैसा कि आपने बच्चे के चचा की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि DPO जंग सरफराज विर्क और वफाकी वज़ीर तलीम और सूबाई वज़ीर तलीम इस चीज़ का नोटिस लें जो बच्चों पर तशद्दुद किया गया, इन मिसेस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक तरफ तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बढ़ते हुए केसेस, तो दूसरी तरफ कामों की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से गैर कानूनी जुमा बाजार कायम कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं कामों से राना जफर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और बाज़ारों और उसके अलावा मैरिज हॉल को तो बंद करने के आर्डर जारी कर दिए थे और उनको बंद भी कर दिया गया है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामों की रेलवे रोड पर, और यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैर कानूनी जुमा बाज़ार कायम किया गया है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और उनको आप SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर किसी ने ना तो मास्क पहना है और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। तो अगर इसी तरह लोगों ने हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी की तो कोविड-19 के केसेस में मज़ीद इजाफा हो सकता है। यहाँ पर अगर कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की बात की जाए, बेबस नज़र आ रही है या फिर वो किसी और वजह से यहाँ पर कार्रवाई करने से कासर है। तो इस हवाले से जब शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि जब हर जगह पर बाज़ारों को और मार्केट्स को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर लोगों को खुली छुट्टी दे दी गई है ताकि कोविड-19 जो है वो बढ़ सके, तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि यहाँ ये ऐसे
जाम शोरों में कोटरी फाटक से खुदा की बस्ती तक रोड टैंकर माफिया की वजह से काफी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मुकद्दर अली, अपडेट कीजिएगा। वक्त में मौजूद हूँ जाम चौरों के तहसील कोटरी पर, जो बबर स्टॉप पर जदोजहद कमेटी की जानिब से एहतजाज किया गया है यहाँ के रहनुमाओं से कि रोड तमीर की वजह से उनका क्या मुतालबा। यहाँ से हर बंदा गुजरता है, हमारा कारोबार लाखों का होता है, करोड़ों का तकरीबन डेली। हम टैक्स भरते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन हम तकरीबन सालों से हमारा को रोड बना के नहीं दे रहे हैं। इसलिए यहाँ के जो बंदा गुजरता है, बीमार हमारा कोई कोटरी शहर अस्पताल जाता है, रास्ते में उसका दम निकल जाता है। ये मुतालबा करते हैं यहाँ के MNA MP से DC से कि हमारे को रोड बनाया दिया। 3 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है, जिसकी महीना बजट 3 से 4 करोड़ रुपए है, लेकिन यहाँ पे 2021 में भी रोड की कोई सहूलत नहीं है। रोड एक बुनियादी हक है। ये रोड की हालत इंतहाई ख़राब है। आज जो हमारा एहतजाज है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे मुतालबे को माना जाए, यानी कि अगर मुतालबे को न मनाया गया तो हम DC ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे और MPA और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनका घेराव करेंगे। किलोमीटर नहीं बना है, ये उनके लिए बड़ी शर्म की बात है कि आवाम रोडों पे निकल आई है, 3 किलोमीटर से नहीं बढ़ रहा। आज हम मुतालबा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि इस रोड को तामीर किया जाए। अगर रोड तामीर नहीं हुआ तो DC ऑफिस का घेराव करेंगे, MNA MPA का घेराव करेंगे और CM सिंध का घेराव करेंगे। उनसे बातचीत हुई है, इन्होंने मुतालबा किया है डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर आला सिंध से कि फौरी तौर पर ये रुकने कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख के बेटे साबिका सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चेयरमैन टावटा इरफान कैसर शेख की नागहानी वफात पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब, रजिस्टर्ड चनियोट और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान और मेंबरान का ताज़ियती इजलास हुआ। चनियोट से नासिर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चनियोट में रुकन कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख के बेटे चेयरमैन टावटा इरफान कैसर शेख की नागहानी वफात पर ताज़ियती इजलास ज़ेर सदारत सदर चौधरी शाहिद महमूद और जन्नत सेक्रेटरी गुलाम मुर्तज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सदर प्रेस क्लब शाहिद महमूद चौधरी, जन्नत सेक्रेटरी गुलाम मुर्तज़ा ने शिरकत की। MNA कैसर अहमद शेख और उमर शेख ने भी इजलास में ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास के दौरान MNA चनियोट कैसर अहमद शेख के बेटे चेयरमैन टावटा पंजाब इरफान कैसर शेख की अचानक वफात पर गहरे रंज और गम का इज़हार किया गया और मरहूम के साले सवाब के लिए दुआए मगफरत भी की गई। जबकि इस मौका पर MNA कैसर अहमद शेख का कहना था कि मेरे साथ अचानक एक बड़ा हादसा पेश आया, लेकिन मैं ममनून हूँ अपने शहर के लोगों का और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के अहदेदारों और मेंबर का जो मेरे इस गम में मेरे साथ बराबर के शरीक हुए। हम सबको अब सिर्फ इरफान कैसर की मगफरत और जनरल फिरदौस में आला मकाम अता करने की दुआ करनी चाहिए। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी, TV टुडे न्यूज़ चनियोट। इफ्यू भकर के ज़रिए तमाम मुकामी होटल में एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी के अफराद, सहाफ़ी और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर मिस सुमेरा शाहीन ने निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जबकि असलम जान ने सोसाइटी का तारुफ बयान किया। तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर भक्कर मुबशिर कलीम गुल ने बताया कि मौसम तब्दील हो रहा है, हमें इसकी मुनासबत से आगाही की शदीद ज़रूरत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इनके पास टेक्निकल स्टाफ की कमी है, लेकिन वो हालात पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DPO कसूर इमरान कीश्वर और DSP पत्तों की अकराम खान की खसूसी हिदायत पर SHO थाना सदर फूलनगर का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग 6 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 67 लीटर शराब और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। DPO कसूर इमरान किश्वर और DSP इकरामुल्लाह न्याजी की खसूसी हिदायत पर SHO थाना सदर फूलनगर राहिल खान गांव के एक शराफत अली से 12 बोर बंदूक, 222 बोर राइफल और गोलियां, दीनानाथ के मुश्ताक से 20 लीटर शराब, नथे जागीर के नादर से 21 लीटर शराब, जबकि बोंगा बलोचा के आदिल वल्द अशरफ से 30 बोर नाजायज पिस्तूल, जबकि सराय शनबा के कलीमुल्लाह से 25 लीटर शराब बरामद कर ली। CIA पुलिस ने सियालकोट में बड़ी कार्रवाई की है। 3 हकीकी भाइयों पर मुश्तमिल बैनुल इस्लाही गैंग गिरफ्तार कर लिया।
सीपीओ गुजरांवाला सरफराज अहमद फल्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिमान मुख्तलिफ शहरियों में वारदात करते थे और मुलजिमान के खिलाफ मुतअद्दिद मरतबा थानों में 49 के करीब मुकदमा दर्ज हैं और मुलजिमान सुबह 8 से 10 बजे के दौरान सुपर स्टोर, बेकरी और फार्मेसी में वारदात करने के बाद फरार हो जाते थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानेवाल में डीआईजी डॉक्टर मजहरुल हक का काका खेल के एजाज में फेयरवेल पार्टी का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान की इस रिपोर्ट में। खानेवाल डीआईजी डॉक्टर मजहरुल हक काका खेल के एजाज में फेयरवेल पार्टी का इनेकाद किया गया। फेयरवेल पार्टी एसपी नदीम अशरफ वड़ाई सेक्टर कमांडर N5 सेक्टर 2 ने होस्ट की। फेयर पार्टी में M5 जोन के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। एसपी नदीम अशरफ वड़ाई ने कहा कि डीआईजी मजहरुल हक काका खेल की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। डीआईजी मजहरुल हक मातहत और निहायत ही शफीक इंसान हैं। डीएसपी राणा इस्माइल ने कहा कि डीआईजी मजहरुल हक जैसे मेहरबान ऑफिसर महकमे के माथे का झूमर हैं। फेयरवेल पार्टी में हर 3 जोन्स के सेक्टर कमांडर ने भी शिरकत की। कैमरामैन टीम के हमरा मलिक उस्मान, टीवी टुडे। दादू के बुखारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में खेलों में नुमाया पोजीशन लेने वाले तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। दादू के बुखारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में खेलों में नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबात में इनामात तकसीम किए गए। इनामात में लॉन्ग जंप के लिए एहसन पनहोर, सीख रेस के लिए जुल्फिकार अली और मुतअद्दिद ने शिरकत की। सूबा बलोचिस्तान के शहर नसीराबाद में बासर जमींदार ने गरीब शख्स की जमीन पर कब्जा कर लिया। मुतासरीन का कहना है कि वो लोग बाअसर हैं, इसलिए पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारी आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील है। सूबा बलोचिस्तान के शहर नसीराबाद में बासर जिम्मेदार ने गरीब शख्स की जमीन पर कब्जा कर लिया। मुतासरीन का कहना है कि वो लोग बाअसर हैं, इसलिए पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमारी आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील है। दुनिया भर की तरह मुस्तफाबाद के गिरदोनवाह देहातों में कोरोना ने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हमारे नुमाइंदे तारिक मकबूल मुस्तफा। अब अपडेट। दुनिया भर की तरह मुस्तफाबाद के गिरदोनवाह देहातों में कोरोना ने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल सरियाली कलां में 2 टीचरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर गांव वालों में खौफो हरास फैल गया। लड़कियां स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ कोरोना टेस्ट मुस्बत आए ने ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਯੱਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। दारुल उलूम तलीम कुरान वजीराबाद में महफिल हुस्न कुर्रात का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कयूम भट्टी की इस रिपोर्ट में। दारुल उलूम तलीमुल कुरान वजीराबाद के ज़ेर इंतजाम 7वीं सालाना महफिल हुस्न क़िराअत व दस्तार फजीलत मुनक़्क़द हुई, जिसकी सदारत मौलाना हाफिज इमरान अहमद ने की। महफिल में मदरसा के तुलबा समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुल्क के नामवर कुरा हजरात ने तलावत कुरान पाक से हाजरीन के दिलों को मुनव्वर किया। नामवर सुना खान मुस्तफ़ा मोहम्मद अंस यूनस ने बारगाह रिसालत में हदिया कीदत पेश करके रूहानी समा बांध दिया। इलामा मोहम्मद ताउला बदयालवी ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान की तिलावत रूह को ताजगी बख्शती है। कुरान हकीम को अपने सीने में महफूज करने वाले लोग अल्लाह ताला के नजदीक बड़ी फजीलत और बुलंद मुकाम रखते हैं। दीनी मदारस इस्लाम के फरोग में अपना
मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा। शब कदर से रिपोर्ट कर रहे हैं अकरामुल्लाह सद्दीकी इस रिपोर्ट में। तहसीली शब कदर बाजार में नाकाबिल बर्दाश्त महंगाई, नाजायज मुनाफाखोर और मसनूई महंगाई पैदा करने वालों ने आवाम का जीना खराब कर दिया है। आटा, घी, दालें, चीनी, फल, दूध, दही और दीगर अशियाई जरूरी की कीमतों में आए रोज इजाफे ने आवाम की जिंदगी अजाब बना दी। चेक एंड बैलेंस का कोई निजाम नहीं। मनमानी नरखों ने आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। हुकूमत, इंतजामिया और दीगर मुतालिका इदारों कीमत कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़रा और मशीरों की खाली बयानात की बाइस आवाम में सख्त मायूसी फैल गई है। अवामी समाजी खलकों ने कमर तोड़ महंगाई के बारे में मीडिया की नुमाइंदों को बताया कि आए रोज कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने जिंदगी अजाब बना दी है। महंगाई, बेरोजगारी की बाइस गरीब अवाम अशियाई खुर्दनोश को सिर्फ देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते। समाजी खलकों की मुताबिक शब कदर बाजार में अरसा दराज मुकामी इंतजामिया और दीगर मुतालिका इदारों ने ग्रान फरोशों, नाजायज मुनाफाखोरों और मसनूई महंगाई पैदा करने वालों पर आंख बंद करके खामोशी इख्तियार की है। अवाम समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि आए रोज कीमतों में बेतहाशा इजाफे को कंट्रोल करने में। नाजरीन, अहमद नगर जुट्ठा में प्राइमरी स्कूल को अरसा दराज से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा बच्चे तालीम से महरूम हैं। 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਂ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮਾੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਦਾ। पाराचनार में पाक फौज की ज़ेरे तमाम स्पोर्ट्स मेला इख्तिताम के पहुंच गया, जिसमें जिला भर से मुख्तलिफ खेलों की टीमों ने हिस्सा लिया। पाराचनार से मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट देखिए। पाक फौज की ज़ेर एहतिमाम कुरम स्पोर्ट्स मेला जिना स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हो गया। स्पोर्ट्स मेले में वॉलीबॉल, कराटे और दीगर मुख्तलिफ खेल खेले गए। इस मौका पर पाक फौज के ब्रिगेडियर नजफ अब्बास और डिप्टी कमिश्नर कुरम डॉक्टर आफाक वजीर ने कहा कि कबायली अजला में मुस्बत तब्दीली लाने और पायदार अमन के क़याम के लिए इस किस्म सरगर्मियाँ ज़रूरी है और मुस्तकबिल में भी खेलों के मुकाबलों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। मुकाबलों के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। खिलाड़ियों और कबायली अमायदीन ने खेलों के मुकाबलों के इनकाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद सादिक, टीवी टुडे। नाज़रीन, मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों में ट्रैफिक कवानीन और रोड हादसात से बचाव के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। आईजी मोटरवे डॉक्टर सैयद कलीम इमाम की खुसूसी हिदायत पर एसपी मोटरवे सखर सेक्टर जावेद इकबाल की जेर निगरानी मोटरवे पुलिस सेक्टर सखर की जानिब से क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समाज से महरूम तलबा और तालिबात और स्कूल के असातिज़ा को रोड हादिसात से बचाव के लिए डेफ रीच स्कूल सखर में रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही दी गई, जिसमें उन्हें रोड सेफ्टी लेक्चर और रोड क्रॉस करने के तरीके से आगाह किया गया। इस मौके पर मोबाइल एजुकेशन सखर सेक्टर के अफसरान इंस्पेक्टर सलाहुद्दीन और सब इंस्पेक्टर सरफराज खान ने स्पेशल बच्चों को रोड सेफ्टी के हवाले से बताया कि मोटरवे पुलिस मुख्तलिफ तालीमी इदारों में रोड सेफ्टी के हवाले से रोड सेफ्टी लेक्चर, सेमिनार्स और रोड सेफ्टी वॉक के प्रोग्राम मुनक्किद करवा रही है। ननकाना साहिब में मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा इकबाल सुहेल शाह की तरफ से सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशी में पार्टी रहनुमाओं के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया। मसीही बरादरी के कदीम गांव माटनपुर में दिए गए जोहराने में वफाकी वजीर इंसदाद मनशियात एजाज अहमद शाह समेत दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं और मोअज़्ज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। माटनपुर पहुंचने पर राय जहांगीर भट्टी का शानदार इस्तकबाल किया गया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।